Hello, my dear friends. In first lecture of solid state of competitive exam, see most important is the radius ratio. Remember one thing, all these things we discussed in chapter that is included, but those things which are new in this chapter that I have to discuss with you, either 2 or 3 lectures required for this. First important is you have to prepare this radius ratio of cation anion. If radius ratio is greater than 0 and less than 0.155, then coordination number of that solid is 2 and geometry is linear. No structure exists, but it is useful for objective for coordination number and geometry. And whenever coordination number or geometry given, then you should know the radius ratio. Now second one is either greater than or equal to 0.155 to 0.225. Then coordination number is 3. Geometry is triangular. Only one structure is there and that is B2O3. B2O3 is the network structure, but boron is connected with 3 oxygen and one simple network structure is formed. Only one example is there. If radius ratio is greater than or equal to 0.2252 to 0.414, then coordination number is 4 and geometry is tetrahedral. The standard structure is ZNS and similar structures are CuCl, CuBr, CuI means all halides of copper, barium sulfide, mercury sulfide. See if radius ratio is greater than or equal to 0.414 and less than 0.732. Coordination number is 6, geometry is octahedral, standard structure is NaCl and similar structures are magnesium oxide, sodium bromide, calcium sulfide. See here, don't make mistake, this is a barium sulfide. Here calcium sulfide, manganese oxide, potassium bromide, calcium oxide. Is it clear? These are the structures. And if radius ratio is greater than is equal to 0.732 and less than 1, then coordination number 8 and cubic structure is there. And best example is cesium chloride and all cesium halide like iodide bromide, thallium bromide, TLBr, and this one is most important. It is no metal is present here, all non-metal, but one positive ammonium ion and bromide ion is a solid crystal structure. But this is the only solid crystal structure in which all are non-metal, nitrogen, hydrogen, and bromine, and one positive ion that is NH4 plus and negative ion that is Br minus. Okay. Now, if the radius ratio is 1, then coordination number 12 geometry is FCC or HCP. As already we studied, some metals are there in example, see like copper, uh, silver, zinc, etc. So 4 metals are given in our book. Another one is there. Sorry for our textbook. Either the geometry is FCC or HCP that I explained you with two examples. Okay. Now, sometimes in problems you are given the structure is like NaCl, structure is like this, and structure is like this. So you should prepare 3 or 4 standard structures. Sometimes all informations are not given directly given. The given structure is like NaCl. So you should know the structure of NaCl. Okay, which type of structure is there. So some standard structure of ionic solids to compare other structures. तो काफ़ी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें ऐसा बोला जाएगा कि ये स्ट्रक्चर NaCl जैसा है, ये स्ट्रक्चर CaCl जैसा है, तो आपको पता होना चाहिए कि NaCl स्ट्रक्चर कैसा है. Okay, so in NaCl structure, chlorine minus form geometry, CCP, cubic closest pack, all Na plus ion occupy all octahedral voids. Coordination number of sodium plus is 6 and coordination number of chlorine minus is 6. And CCP has a stacking pattern ABC ABC.
Okay, so you can give the answer of other questions, other solid which is compared with NaCl. So these are the standard structures required to prepare. You should know about this structure. जैसे कि दूसरा एक स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड आता है कि द स्ट्रक्चर ऑफ गिवन सॉलिड इज लाइक जिंक ब्लेंडी। अगर आप जिंक ब्लेंडी के बारे में नहीं जानते हो ZnS, तो आप आंसर कैसे दे पाओगे? तो जिंक ब्लेंडी में आपको याद रखना है कि S2 माइनस आयन फॉर्म CCP ज्योमेट्री, ऑल Zn2 प्लस ऑक्यूपाई अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वेट। इफ CCP है तो टोटल 4 स्फीयर्स होंगे, टोटल 8 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, लेकिन ऑल नॉट 8 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। ठीक है, तो इस 8 टेट्राहेड्रल वॉइड में से अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड बाय Zn+2, तो अल्टरनेट नेट ऑक्यूपाइड होगा तो टोटल 4 टेट्राहेड्रली ऑक्यूपाइड होगा। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा याद रखना है। और Zn2+, अगर जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें और आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाई दे कि इसका स्ट्रक्चर जिंक ब्लेंडी टाइप है, इसका स्ट्रक्चर रॉक सॉल्ट टाइप है। हाँ, एक बात बताना मैं भूल गया आपको कि कभी कभी क्वेश्चन में लिखा जाता है कि द स्ट्रक्चर इज लाइक अ रॉक सॉल्ट, तो NaCl को सॉलिड की लैंग्वेज में रॉक सॉल्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा कि NaCl मतलब कि रॉक सॉल्ट नेचुरली मिलता है। जिंक ब्लेंडी का Zn2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4, और S2 माइनस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब ज्योमेट्री CCP है तो स्टैकिंग पैटर्न आपके सामने जो आएगी वो है ABC ABC। इज इट क्लियर? देन आफ्टर ZnS का एक दूसरा क्रिस्टल होता है, ये भी स्टैंडर्ड माना जाता है, वुडसाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और सीधे इसके भी क्वेश्चन, ये प्रिपेयर करने का फ़ायदा ये है कि अगर आप लकी है तो सीधे इसके भी क्वेश्चन मिलते हैं। इसमें जिंक ब्लेंडी और वुडसाइट में फ़र्क क्या है? मोलिकुलर फार्मूला इज सेम, बट व्हाट इज द डिफरेंस हियर? इन जिंक ब्लेंडी S2 minus form CCP, here S2 minus form HCP. Once again same Zn2+ form all tetrahedral void, but here in SCP the spheres are 6, so tetrahedral voids are 12, so total Zn2+ are 6, and coordination number here remains same, coordination number of S2 minus 4, Zn2+ 4. Okay, but remember sometimes you are asked how many tetrahedral voids are covered, then out of 12 tetrahedral void, alternate covered means total 6 covered by Zn2+. इज इट क्लियर? और HCP में आप देख रहे हैं मैंने स्टैकिंग पैटर्न समझाई है, तो ये AB टाइप की स्टैकिंग पैटर्न होती है। इज इट क्लियर? AB तीसरा लेयर, अल्टरनेट लेयर सेम होते हैं HCP में। अब ये बहुत बढ़िया CSCl टाइप का स्ट्रक्चर अगर बोले तो आपको क्या याद रखना है? CSCl में क्लोरीन माइनस जो है वो सिंपल क्यूबिक फॉर्म करता है। CS+ जो है सेंटर में प्रेजेंट होता है, वॉइड में नहीं, सेंटर में। ऐसा स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है ना, ऐसे, ये क्यूबिक, ये क्लोरीन, और यहाँ पे CS प्रेजेंट होता है। जो साइज में बड़ा होता है वो सेंटर में रहता है। ये एक ही स्ट्रक्चर ऐसा है जो आप ऐसे बोल सकते हैं। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर CS+ का भी 8, क्लोरीन माइनस का भी 8, और इसकी स्टैकिंग पैटर्न अगर हम बोलेंगे तो क्यूबिक में स्टैकिंग पैटर्न है ऑल लेयर्स आर सेम। कैटायन तो इंटरस्टिशियल साइट में रहते हैं, वो बीच में सेंटर में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारी टेक्स्ट बुक का पार्ट नहीं है लेकिन कॉम्पिटिटिव का पार्ट है, दैट वन इज द फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर एंड एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, ये आपको बैठ के ऐसा रट्टा नहीं मारना है। जब भी आप सॉल्व करें तो ये नोट करके रख लीजिए, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन हमारी टेक्स्ट बुक में से मिलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन फ्लोराइड टाइप और एंटी फ्लोराइड टाइप हुआ, रेडियस रेशियो कैटायन आयन में हुआ, सीधा बोलते हैं कि ये ज्योमेट्री है तो ये कौन सा रेडियस रेशियो आएगा। तो ये टेबल जो मैंने हर एक बुक में टेबल, इसमें टेबल में क्या फ़र्क आता है कि रेंज ठीक से नहीं होती है, यहाँ मैंने परफेक्ट आपको रेंज दे दी है, देखिए। ठीक है, आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट वैल्यू ये लेस देन 0 पॉइंट, अगर 0.115 है तो सीधा आपको यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, ये ग्रेटर लेस वाली साइन जो है वो आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, इसलिए ध्यान से
ठीक से ये जो मैंने नोट दिया है वो नोट कर लीजिएगा। टेबल तो कई जगह पे मिल जाएगा, लेकिन इतना परफेक्ट, ये परफेक्ट वैल्यू के साथ कौन सी वैल्यू में किस ज्योमेट्री में आपको जाना है, वो ग्रेटर लेस वाला टेबल नहीं मिलेगा आपको। तो चलिए, लेट अस मूव टू द फ्लोराइड एंड एंटी फ्लोराइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। सो फ्लोराइड टाइप और एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। तो चलिए पहले देखते हैं फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर का जनरल फॉर्मूला है AB2। विच वन इज द जनरल फॉर्मूला? AB2। अगर चार्ज में देखें, सॉरी, ये रेशियो देखें तो 1:2 है। अगर चार्ज में देखें तो ये है A2 प्लस N2B माइनस। ठीक है, तो चार्ज में 2:1 है, 2:1 चार्ज में। एग्जाम्पल अगर दूं तो ये CaF2, SrF2, BaF2, ये सब फ्लोराइड ही होते हैं, इसलिए बोलते हैं फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। ये सब है फ्लोराइड, तो इसको बोलते हैं फ्लोराइट टाइप स्ट्रक्चर। ओके, और सबको आप कंपेयर करें तो ये Ca मतलब A, ये SrA, BaA, F2 मतलब B2। B2 मोनोवेलेंट होता है माइनस, और A डाइवेलेंट होता है। अब देखिए, इसमें आपको तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो A2 प्लस है वो CCP फॉर्म करता है, मतलब कि कभी भी आपको कैलकुलेशन करना हो तो A4 होते हैं। ठीक है, B ऑक्यूपाई करता है ऑल टेट्राहाइड्रल वॉइड, मतलब कि टेट्राहाइड्रल वॉइड कितने होंगे? 8। तो B कितने हुए? B8। B कितने हुए? 8। तो सीधा फॉर्मूला आपके सामने आएगा A4 B8। 4 कॉमन निकालो, आ गया AB2। 4 कॉमन निकालो तो आ गया आपका AB2। तो ये CCP फॉर्म करता है। B माइनस ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहाइड्रल वॉइड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन नंबर में ध्यान में रखिएगा, ये A2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर है 8, बिकॉज इट ऑक्यूपाई ऑल 8 टेट्राहाइड्रल वॉइड। ओके, तो A2 प्लस B माइनस ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहाइड्रल वॉइड। और एक बात ध्यान में रखिएगा, ये फ्लोराइड टाइप में जो पॉजिटिव आयन है, मैंने आज तक बोला है कि नेगेटिव आयन जो है ज्योमेट्री फॉर्म करता है, ये पॉजिटिव आयन जो है वो CCP ज्योमेट्री फॉर्म कर रहा है, और नेगेटिव आयन जो है वो टेट्राहाइड्रल वॉइड में जा रहा है। तो थोड़ा रिवर्स है। हियर ज्योमेट्री इज फॉर्म बाय कैटायन एंड एनायंस ऑक्यूपाई, क्योंकि एनायन छोटा है with respect to the metal ion। तो कोऑर्डिनेशन नंबर B टोटल 8 ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा। और जो A टोटल स्फीयर 4 आता है, तो B का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा। इस हिसाब से भी आप याद रख सकते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ CaF2, तो CaF2 के बारे में आप कैसे समझाएंगे? काफ़ी ऑब्जेक्टिव के आंसर दे पाएंगे। तो Ca2 प्लस फॉर्म CCP, ये F2 है जो है वो ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहाइड्रल वॉइड F माइनस। ओके, और आप फॉर्मूला बनाएंगे तो आपको मिलेगा बाद में AB2CaF2। इज इट क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पूछे और आपको इतना बोले कि ये फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर है, तो ध्यान रखिएगा कि केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, क्योंकि केटायन जो है ये टेट्राहाइड्रल वॉइड 8 है और ऑल कवर्ड, जो टच करते हैं केटायन को, तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। एनायन जो होते हैं वो केटायन जो होते हैं वो एनायन के कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। तो ये CCP फॉर्म कर रहा है, तो ये 4 है, तो ये एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर है, ध्यान में रखिएगा। इससे रिवर्स एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, विच स्ट्रक्चर? एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अगर जिस बच्चे को फ्लोराइड स्ट्रक्चर आता है उनको आराम से एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या था, थोड़ा कंपेयर करके हम चलेंगे। उसमें क्या था? AB2। अब एंटी फ्लोराइड मीन्स ऑपोजिट टू फ्लोराइड, इसमें क्या आएगा? A2B। एक इसमें क्या है? AB2 में रेशियो ऑफ एटम 2:1। यह क्या है? ये AB2 A2B, सॉरी A2AB, फिर से लेते हैं, ठीक है, थोड़ा उल्टा हो गया। फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्या है? AB2। फिर से देखना, फ्लोराइड स्ट्रक्चर है AB2। अब एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्या है? A2B। इज इट क्लियर?
फ्लोराइड स्ट्रक्चर में जो एटम का रेशियो है वो 1:2, एंटी फ्लोराइड में जो एटम का रेशियो है वो 2:1, फ्लोराइड में चार्ज का रेशियो है 2:1, सब कुछ रिवर्स होगा। यहाँ A प्लस है, A प्लस 2A प्लस एंड B 2 माइनस, लाइक दैट। तो चार्ज में देखें तो +1 है तो 1:2 चार्ज आएगा। तो इतना रिवर्स तो देख लिया। अब देखिए A प्लस उससे रिवर्स है, B2 माइनस फॉर्म CCP, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो CCP फॉर्म कर रहा है, तो B2 माइनस कितने होंगे 4। A प्लस ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहाइड्रल वॉइड, मतलब कि A कितने होंगे 8। तो फॉर्मूला क्या बनेगा A8 B4, 4 कॉमन निकाल लो तो A2B। आ गई बात समझ में, A2B हो गया। उसमें क्या था A2 प्लस ऑक्यूपाई, तो उसमें आया था फॉर्मूला A2B। आप ऐसे फॉर्मूला भी बना सकते हो जनरल, अगर आपको पता है कि कौन ज्योमेट्री फॉर्म कर रहा है और कौन टेट्राहेड्रल। ये रिवर्स है, उसमें क्या था A2 प्लस फॉर्म CCP और B माइनस ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहाइड्रल वॉइड, ये फ्लोराइड में था। अब देखिए एंटी फ्लोराइड में टोटली रिवर्स है, तो जिसको भी फ्लोराइड आता है उनको एंटी फ्लोराइड में सब कुछ रिवर्स कर देना है, टोटली ऑपोजिट टू फ्लोराइड, टोटली ऑपोजिट टू फ्लोराइड। तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेंज हो जाएगा। आप देखिए A2 प्लस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था 8, A2 प्लस में कोऑर्डिनेशन नंबर 8, B माइनस का 4, तो यहाँ पे A प्लस का 4 और B2 माइनस का 8, इसका 4 और इसका 8, तो ये भी रिवर्स हो गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, मतलब कि जो 8 था वो 4 हो गया, जो 4 था वो 8 हो गया। इसे क्लियर? एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। इसमें एग्जाम्पल है ये रहा Na2O, बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है Na2, ये है A2B, Na पॉजिटिव ऑक्सीजन 2 माइनस मीन्स A प्लस B2 माइनस, Na प्लस ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड एंड O2 माइनस फॉर्म CCP, मतलब कि O2 माइनस जो है वो CCP फॉर्म कर रहा है, वो तो 4 होगा। Na प्लस ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब कि वो 8 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि Na 8 है और ऑक्सीजन कितने 4 है, 4 को कॉमन निकालो तो Na2O आ गया आपका मोलिकुलर फॉर्मूला A2B टाइप। ओके, अब जो जितने ऑक्सीजन माइनस है वो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होगा, तो Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जितने Na प्लस है वो O2 माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, तो O2 माइनस का हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी ऐसे टेक्निकली आप याद रख सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आप करके भी कोऑर्डिनेशन नंबर को याद कर सकते हो। ठीक है, इसमें और इससे भी बहुत बढ़िया टॉपिक, और वो है स्पाइनल एंड एंटी स्पाइनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, स्पाइनल्स एंड एंटी स्पाइनल स्ट्रक्चर्स। तो चलिए बात करते हैं स्पाइनल और एंटी स्पाइनल के बारे में। आज में जो है टॉपिक में आज के, उसमें आपको थोड़ा याद रखना है, धीरे काम करना है, तो मैं इतना लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि क्वालिटी वर्क करना है आपको। ठीक है, तो आई विल नॉट गिव यू द, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आप जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा। इसमें आप हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर को समझ लेना जरूरी है। नीट वाले नीट के पेपर सोल्व करेंगे, जेडब्ल्यू वाले जेडब्ल्यू के सोल्व करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको स्पाइनल एंटी स्पाइनल, मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ कि टेक्स्ट बुक में से ही क्वेश्चन हो, लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक का कॉर्नर टू कॉर्नर प्रिपेयर करते हो लेकिन
अगर कहीं पे आपने फ्लोराइड एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर देख लिया, कहीं पे बोला कि रॉक्सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कि रॉक्सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर मीन्स NaCl, और आप अफसोस करेंगे कि यार ये तो NaCl, तो मुझे पता था कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो आंसर तो चलो, क्वेश्चन ऐसा है कि the given crystal has a structure like rock salt, then what is the coordination number of cation? तो सीधा है 6 6। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि रॉक सॉल्ट क्या है, तो प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे और दो स्ट्रक्चर हैं, इसको दिमाग में ठीक से बिठा लो। ठीक है, कौन से दो स्ट्रक्चर? फ्लोराइड एंटी फ्लोराइड। एंटी फ्लोराइड मतलब कि जिस स्टूडेंट को फ्लोराइड आता है उनको एंटी फ्लोराइड वो अपने आप वो बना सकता है। टोटल थिंग्स आर ऑपोजिट देन द फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर्स। एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे आप Na2O मैंने दिया है, और आप बना सकते हो K2O, है ना, पोटेशियम ऑक्साइड। लेकिन ज़्यादातर Na2 फ्लोराइड एंटी फ्लोराइड में ये कोऑर्डिनेशन वाले Na पॉजिटिव आयन जो है ये टेट्राहाइड्रल और ये नेगेटिव CCP फॉर्म करता है। ये सब बातें दिमाग में धीरे धीरे आपको बिठा लेनी है। ठीक है, अब बात आती है स्पाइनल और एंटी स्पाइनल स्ट्रक्चर्स की। स्पाइनल स्ट्रक्चर्स एंड एंटी स्पाइनल स्ट्रक्चर्स। तो आज के लेक्चर में सिर्फ मैं स्पाइनल स्ट्रक्चर्स के बारे में ही आपको बताऊंगा। एंटी स्पाइनल जो है, स्पाइनल आपको दिमाग में बैठ जाए, पूरा अंदर घुस जाए, उसके बाद ही हम एंटी स्पाइनल में जाएंगे। ठीक है, और फ्लोराइड एंटी फ्लोराइड तो इजी है, वो भी आपको याद रखना है। अब स्पाइनल क्यों है? स्पाइना ये लैटिन वर्ड है, उसका इंग्लिश में स्पाइंस बोला जाता है। स्पाइंस means the stone having needle like shape. Generally the spinal crystals are the oxides or oxides of magnesium and aluminium. ठीक है, ये स्पाइनल जो है वो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है। ये जनरली हम ज्वेलरी में, जेमस्टोन में यूज करते हैं। ठीक है, इसके कलर्स भी वेरिएशन में आते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, ब्राउन, वायलेट, ब्लैक एंड कलरलेस। इतने कलर वेरिएशन में वो आते हैं। तो हम लोग इसका एज ए जेमस्टोन यूज करते हैं, नॉट जेम्स बॉन्ड, जेमस्टोन माय फ्रेंड्स। सो दे आर द जेमस्टोन्स। अब बात ये नहीं है कि ये जेमस्टोन, अब स्पाइनल स्ट्रक्चर को हमें दिमाग में बिठाना है। तो उसका जनरल स्ट्रक्चर है Ab2O4। ये मैं प्रूव करके भी मैं आपको दूंगा। इसका अगर आप आयोनाइजेशन करेंगे तो स्पाइनल स्ट्रक्चर में जो एक पॉजिटिव आयन होता है वो डाइवेलेंट होता है। बी भी पॉजिटिव आयन है, वो ट्राइवेलेंट होता है। आयन द ऑक्सीजन -2, तो आप देखिए +2, ये +6 और ये -8 हो गया। तो टोटल हो गया न्यूट्रल 0। कोई स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जो पॉजिटिव आयन है वो टेट्रावेलेंट, ये टेट्रावेलेंट, वो रेयर केस होता है, लेकिन आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। जो दूसरा पॉजिटिव आयन होता है वो डाइवेलेंट होता है। एक तो ये हुए +4, 2 है ना बी, तो +8, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2, तो ये -8 0। ठीक है, तो ए या तो डाइवेलेंट होगा या तो टेट्रावेलेंट होगा, बी या तो ट्राइवेलेंट होगा या तो डाइवेलेंट होगा। ऑक्सीजन में तो कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, दोनों सूरतों में आपका जनरल स्ट्रक्चर बनेगा, जनरल फॉर्मूला Ab2O4। अब ज्योमेट्री कैसे फॉर्म होती है देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। O2- जो है वो FCC फॉर्म करता है, तो अब साइड में हम नोट करते जाएंगे। वो FCC फॉर्म करता है तो O2- होंगे 4। A2+ ऑक्यूपाई 1/8 ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड्स। तो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स अगर FCC है तो 8 होंगे। तो A2+ जो है साहब, A2+ है वो टोटल टेट्राहाइड्रल वेट का 1/8 कवर करता है, मतलब कि एक ही टेट्राहाइड्रल वेट कवर करेगा। B3+ ऑक्यूपाई 1/2 ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वेट्स। तो क्रिस्टल में ऑक्टाहाइड्रल वेट वो FCC है तो ऑक्टाहाइड्रल वेट 4 ही होंगे, और उसके आधे 1/2 कवर करते हैं। तो B3+ जो होंगे वो कितने होंगे? B3+ होंगे वो होंगे 2।
ए एक, A2+, B3+2 और ये ऑक्सीजन 4। हो गया आपका जनरल स्ट्रक्चर Ab2O4। अगर आपके पास ये नॉलेज है कि इन अ स्पाइनल स्ट्रक्चर नेगेटिव आयन फॉर्म एफसीसी, डाइवेलेंट मतलब कि डाइवेलेंट आयन जो है मेजोरिटी डाइवेलेंट आएगा, आप चिंता मत करिए। टेट्रावेलेंट है तो भी इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। डाइवेलेंट ऑक्यूपाई 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल B3+ ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल, आधे जो ऑक्टाहेड्रल हो कवर करेंगे। तो ये जो मैंने आपको साथ साथ समझाया वो सब कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने फिर बताई है, तो आप यहाँ से नोट कर लो। O2- 4 होंगे, A2+ 1 आएगा, ठीक है, B3+ जो है 2 आएगा। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला Ab2O4। अब मुझे ये दिखाना है यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल्स। देखिए ये Zn, तो ये 2+, ये एल्यूमिनियम एक का होगा 3+ और ऑक्सीजन 2-, ये Mg 2+, एल्यूमिनियम 3+ और ऑक्सीजन 2-, Zn2+, Fe3+। तो ये सब देखिए Ab2O4, Ab2A, B2O4 के साथ मैच हो रहे हैं। तो सीधा साधा स्ट्रक्चर ज्यादातर नीट में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पाइनल क्रिस्टल। तो आपको जनरल स्ट्रक्चर याद है और पता है कि पहला डाइवेलेंट, दूसरा ट्राइवेलेंट और नेगेटिव आयन इज डाइवेलेंट 2-, और 4+, 2+ एंड 2-, लाइक दैट। कोई एक 4 ऑप्शन में से दिख जाए तो आप 4 मार्क्स के मालिक हो जाते हैं, और 4 मार्क्स के मालिक होना मतलब कि मेरिट में बहुत ऊपर चले जाना, ठीक है। अब देखिए कभी कभी स्ट्रक्चर ऐसे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइनल स्ट्रक्चर, तो अगर 4 ऑक्सीजन में 1 A और 2 B है, ठीक है, तो एक ऑक्सीजन 2- पे A2+ 1/4 होंगे और B3+ हाफ होंगे। अगर मैं यहाँ पे एक ऑक्सीजन ले लेता हूँ तो A जो है वो 1/4 और B जो है वो हाफ, ठीक है। एक ऑक्सीजन पे A 1/4, 4 ऑक्सीजन है, और B जो है वो हाफ, ठीक है। 4 ऑक्सीजन पे 2 है तो एक ऑक्सीजन पे कितना होगा। जनरल स्ट्रक्चर देखिए Ab2O4 है ना, Ab2O4। मैं एक बार फिर से समझा दूं, अगर 4 ऑक्सीजन है तो एक A है, 4 ऑक्सीजन है तो अगर एक ऑक्सीजन होगा तो कितना A होंगे, तो A आएगा 1/4, ये रहा। अगर 4 ऑक्सीजन है तो हमारे पास 2B, तो अगर एक ऑक्सीजन होगा तो कितना B होगा, तो B कितना है 2/4, 2/4 तो ये रहा 1/2। आ गया समझ में। तो एक सीधा साधा यूनिट स्ट्रक्चर बनता है ये। ऐसा भी कभी ऑप्शन में देखे तो ये स्पाइनल स्ट्रक्चर है। तो अब इसका आप ऐसा तो कोई मोलिकुलर फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ नहीं होता है, तो आप एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या है 4, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 4 4 कैंसिल आउट, A1। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय S है, A 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4, B 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड O 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो A1B2O4 आ गया, AB2O4। और एक चीज पूछी जाती है कि रेशियो फाइंड करो जिसमें टेट्राहाइड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहाइड्रल वॉइड कवर होते हैं, ठीक है। तो टेट्राहाइड्रल वॉइड कितने हैं और कितने कवर होते हैं, फिर से जाना पड़ेगा। टेट्राहाइड्रल वॉइड कितने होते हैं भाई साहब, एक बार देख लो। टेट्राहाइड्रल वॉइड 8 होते हैं, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड जो होते हैं 4 होते हैं। तो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड 2 कवर हो रहे हैं, तो यहां लिखिए कवर्ड, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड कवर्ड 2, और टेट्राहाइड्रल वॉइड तो एक ही कवर होता है 8 में से एक।
अब इसका रेशियो लेंगे टेट्राहाइड्रल वोइड कवर्ड एंड ऑक्टाहाइड्रल वोइड कवर, तो 1/2 आएगा। यही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए रेशियो ऑफ टेट्राहाइड्रल अपॉन ऑक्टाहाइड्रल, ये रिवर्स में होगा तो 2:1 आएगा। ऑक्टाहाइड्रल अपॉन टेट्राहाइड्रल देन 2:1, और टेट्राहाइड्रल अपॉन ऑक्टाहाइड्रल देन 1/2। अब हमारे पास टेट्राहाइड्रल वोइड 8 है, ऑक्टाहाइड्रल वोइड 4 है, तो टेट्राहाइड्रल वोइड जो है वो 8 में से 1 कवर हो गया, बाकी कितना बचा? 7। ऑक्टाहाइड्रल वोइड जो 4 है उसमें से 2 कवर हो गए, बाकी कितने बचे? 2। तो टेट्राहाइड्रल वोइड अपॉन ऑक्टाहाइड्रल वोइड अनऑक्यूपाइड, तो यहाँ 8 - 1 4 - 2 7/2 7:2। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप नेक्स्ट लेक्चर तक यहाँ तक पूरा प्रिपेयर हो जाओ। क्या वो टेबल पूरा ठीक है, टेबल ठीक से लिख लेना, ऐसा टेबल नहीं मिलेगा ग्रेटर देन परफेक्ट वैल्यू वाला, आपको रेंज मिलेगी, तो आप यहाँ पे ड्यूअलिटी में रहोगे। अब मैं बात डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ एंटी स्पाइनल स्ट्रक्चर और इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। उस टाइम पे आपको स्पाइनल स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, तब तक के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैं फिर से आपको दिखा दूँ, ये टेबल मैंने एक बार आपको कहीं पे दिखाया तो है, लेकिन इतना परफेक्ट बहुत मेहनत करने के बाद मैंने ये, जैसे कि ये रेंज आती है तो 0.115 पे यहाँ ड्यूअलिटी रहती है कि ये लीनियर गिने या ट्रायंगुलर गिने, ठीक है। 0.225 ये 0.225 तो ड्यूअलिटी रहती है कि ये ट्रायंगुलर गिने कि टेट्राहेड्रल गिने, ठीक है। ये क्या 0.41 ये 414, तो यहाँ ड्यूअलिटी रहती है कि टेट्राहेड्रल गिने कि ऑक्टाहेड्रल गिने। इसलिए मैंने बोला है कि लेस देन वैल्यू ये है, अगर 0.115 और ग्रेटर हो जाता है तो यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। तो ग्रेटर लेस वाला जो टेबल है वो मुश्किल से मिलता है, तो इस हिसाब से आप, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स मैंने दिए हैं ऑक्टाहेड्रल और स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, उसके साथ ये कुछ एग्जांपल्स वो भी जरा आप करिएगा। और एक टेबल आएगा जिसमें सब मेटल्स इंपॉर्टेंट आज तक पूछी गई है, ठीक है। ये सब केमिस्ट्री के ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो ये टेबल अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे ठीक से तो आप काफ़ी क्वेश्चन के सीधे आंसर दे पाएंगे। जनरली आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ये वाली इन्फॉर्मेशन, और ये रेशियो ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज सुटेबल फॉर दैट, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मेटल की ज्योमेट्री टेबुलर फॉर्म में, उसमें कुछ समझाना नहीं होता है, जैसे कि कॉपर जो है वो HCP या तो FCC फॉर्म करता है, ऐसे ऐसे एक बनाएंगे, और एंटी स्पाइनल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, और एक स्ट्रक्चर बाकी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।